Hello students, I am Kamaljeet Singh, Assistant Professor, Chandigarh Polytechnic College, Kadua. Today I will give you basic idea of triple EM, Electrical and Electronics Engineering Material and classification of material. So let's start with the topic. So I am going to share a screen with you. So here we go. So classification of material. Electrical and electronics engineering material is one of core engineering subject. The perfect knowledge of this subject is very useful. Almost every field of engineering. As we know, in electrical system, we used material. For example, we categorize the electrical engineering material in four categories. Number one is conducting material, second is insulating material, and semiconducting material, and magnetic material. जब भी हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी हमने काम करना है, तो हम वहाँ पे मटेरियल की नॉलेज हमें होनी बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें कंडक्टर चाहिए. फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी नीड कंडक्टर. कंडक्टर इज़ अ material which allow passes of electrical current. For example, copper, aluminium, brass, bronze. These are the conductor. These are the conductor. They allow easily flow of current themselves. These are the conductors. So next is insulating material. These are the material which do not allow the passage of electrical current. इनमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं होता. बेसिकली इनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है. These insulating materials are having high resistance. Most widely used insulating material are rubber, wood, glass, ceramic, mica, etc. सिरामिक, अगर आपने देखा हो चीनी मिट्टी, अगर चीनी मिट्टी के आपने छोटे छोटे अपनी डेली लाइफ में देखे हैं ना, कप वगैरह या खिलौने, तो उस तरह का ये मटेरियल होता है सिरामिक. सेम वही मटेरियल होता है. तो इसको हम एज ए इंसुलेटर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आपका सेमी कंडक्टिंग मटीरियल. ये वो मटेरियल होते हैं जो लाई करते हैं बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. दीज आर द मटीरियल विच लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. इनकी जो रजिस्टिविटी होती है, these are the material whose resistivity is less than insulator. इंसुलेटर से इनका रेजिस्टेंस कम होता है लेकिन कंडक्टर से ज़्यादा होता है. These are the material whose resistivity is less than conductor but more than less than insulator but more than conductor. Semiconducting material are silicon, germanium, gallium, etc. So these are the semiconductor material. Next we are having magnetic material. These are the material which are easily magnetized by magnet. इनको हम मैग्नेट से, चुंबक से मैग्नेटाइज कर सकते हैं अपनी तरफ. These are the material which can easily magnetized. For example, हमने डेली लाइफ में सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको पता हो वो आयरन है, लोहा. जो आयरन है वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. इट मीन्स आयरन इज अ मैग्नेटिक मटीरियल. सो इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम वी आर यूजिंग magnetic material. For example, iron, nickel, cobalt, these are the most widely used magnetic material. So we categorize the material in four categories. Number one is conductor, which allow the electrical current, which allow the passage of electrical current themselves. Insulator do not allow the passage of electrical current in themselves. And thirds are the semiconductors. Semiconductors are the material which lie between conductor and insulator. So fourth one are the magnetic material. These are the material which are easily magnetized by magnet. For example, iron, nickel, cobalt. So
in this subject, it is very important we we should have idea of atomic theory. What is atomic theory? According to Thomson theory, according to Bohr theory, there are so many theories. For example, Thomson theory, Rutherford theory, but we will discuss Bohr atomic theory. In this theory, Bohr tells us the basic structure of atom. You know, every element consists of atoms, and atom is a tiny particle, very small particle. ठीक है? According to this theory, Bohr tells us the structure of atom. According to this theory, an element, an atom of any element consists of two main part. ये जो एटम होता है एलिमेंट में, जो एटम्स हैं छोटे छोटे, कोई भी जो एलिमेंट छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है. ये दो पार्ट्स में होता है. वन इज न्यूक्लियस एंड अदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम. न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर पार्ट ऑफ द एटम. इट कंटेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स. Protons are the positively charged particle and neutron are the neutral. And the second is extra nucleus. Extra nucleus are the orbits. The outermost, this is the outermost part of an atom around the nucleus is known as extra nucleus. It contains electrons only, as the number of electron equal to number of proton. So according to this theory, an atom has two parts. One is nucleus, it is the center part of the atom, and other is extra nucleus, it is the outermost part of the atom. It contains electrons only. Electrons are the negatively charged particle. क्लियर है यहाँ तक? और कोई भी एटम है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन. फॉर एग्जांपल कॉपर हैविंग अ एटॉमिक नंबर 29. 29 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कॉपर की एटम में 29 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, यानी कि 29 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं न्यूक्लियस में सेंटर में, और उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में जो आप इसका आउटर मोस्ट पार्ट है. सो कोई भी एटम है, सो एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है. तो नेट चार्ज क्या हुआ एटम पे? जीरो. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, an atom has two parts. One is nucleus and another is extra nucleus. In the nucleus, it contains proton and neutron. In extra nucleus, it contains electrons only, and the number of electrons equal to number of proton. So an atom is a electrically neutral in nature. So according to this theory, the electron in orbit is given by 2n square. 2n square. Yeah, this is the formula. 2n square. 2n square, where n is the number of orbit from the nucleus. n क्या है? number of orbit. For example, in this pic, यहाँ पे देख रहे हो आप, this is the center part of atom. यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, एंड ये जो रेड कलर में इन्होंने शो किया न्यूट्रन. ये जो पॉजिटिव चार्ज है, these are the protons. तो with respect to this nucleus, यहाँ से अगर हम देखते हैं, दिस इज द शेल, के शेल, ऑर्बिट नंबर 1. इसको रदरफोर्ड ने बोहर ने नाम दिया है के शेल. ये जो है आपका ऑर्बिट नंबर 1 है. दिस इज ऑर्बिट नंबर 1. सो वेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ न्यूक्लियस वेयर n इक्वल टू 1, इन्होंने लिखा ना, व्हेन वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो n इक्वल टू 1. सो under normal condition, number of proton equal to number of electron in an atom. जब भी हमारी नॉर्मल कंडीशंस होंगी, बिल्कुल नॉर्मल, जो कुदरती तौर पे बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हमेशा जो प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. सो देयरफॉर एन एटम इज न्यूट्रल एज अ होल. कोई भी एटम है वो न्यूट्रल होगी. This explains why a body does not any charge under normal condition. It means ये कहना चाहता है कि कोई भी जो एटम है, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है.
सो एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो ये जो पिक है इसमें ये फार्मूले के हिसाब से बता रहा है हमें कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सो वेयर के ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, फार्मूला लगाएंगे हम 2n², वेयर 2 इंटू 1 क्यों आया, क्योंकि के की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि ऑर्बिट नंबर ये 1 है। 2 इंटू 1² 2, तो पहले ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं 2। सिमिलरली वी विल मूव टू एल, 2 इंटू 2²। यहाँ पे 2 क्यों आ गया, क्योंकि L की वैल्यू क्या है 2 फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से देखिए ये जो L है ये ऑर्बिट नंबर 2 है, तो L की वैल्यू इन्होंने क्या भर दी 2²। सो दिस इज 2 इंटू 2², ये है 8। तो हमारे जो L शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं 8। सिमिलरली ऑर्बिट नंबर 3, इफ देयर इज अगर ऑर्बिट नंबर 3 है आपकी ऑर्बिट में एटम में, तो यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 3 होगा, वहाँ पे दैट इज KLMN, इन्होंने नाम दिया है KLMN। हम क्या कह सकते हैं इसको 1 2 3 4। सो इन ऑर्बिट नंबर 3 तो n की वैल्यू क्या आ गई 3, 2 इंटू 3² दैट इज 80। तो जो आपका ऑर्बिट नंबर 3 है, इन ऑर्बिट नंबर 3 देयर आर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कुड बी कितने हो सकते हैं 80। सिमिलरली इन n शेल वी कैन से ऑर्बिट नंबर 4 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस से हम यहाँ पे आपका 4th शेल है तो वहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी 4, 2 इंटू 4² दैट इज 32। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 4th शेल में कितने हो सकते हैं दैट इज 32। सो अगर हम कॉपर का एग्जांपल लें, सो इफ वी आर गोइंग टू टेक अप एग्जांपल ऑफ कॉपर, इन कॉपर हैविंग अ एटॉमिक नंबर ऑफ 29। सो 29 के हिसाब से हमारे जो कॉपर में है, सो 29 के हिसाब से हमारे जो कॉपर में है दैट इज, तो उसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दैट इज 2n² के हिसाब से 29 हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट ऑर्बिट, so here I am going to take the example of copper atom. So here you can see I have zoomed the structure of copper atom. In this diagram you can see that this is nucleus, center part of copper atom. Here 29 protons, because I have told you according to Bohr theorem there are 29 protons, 29 electrons. So according to formula 2n², in the first orbit there are 2 electrons, in the second orbit कितने होने चाहिए 8, because 2 into 2² that is 8. So we will count here 1 2 3 4 5 6 7 8. So we have filled the 8 electrons in second orbit according to electron distribution formula, that is 2n² given by Bohr, Neil Bohr. So in third orbit, how many electrons should be in the third orbit? There are 18, because 2 into 3² 2 into 3² that is 18. So we will count here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So there are 18 electrons. Now we will sum the electrons in the orbits. In first orbit there are 2 electrons, second 8, third 18. Total sum of the electrons are now 28. तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है पहले 3 ऑर्बिट में कितने हो गए 28, लेकिन कॉपर में कितने हैं 29। तो एक जो इलेक्ट्रॉन बचा आपका वो कहाँ जाएगा, वो है आपका 4th ऑर्बिट में, दैट इज हेयर। क्योंकि हम 4th ऑर्बिट में होने कितने चाहिए, एज पर फॉर्मूला 2 into 4² दैट इज
32, बट लेकिन 32 तो होंगे नहीं, क्योंकि कॉपर की जो एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 29. सो हेयर विल बी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. तो हम कह सकते हैं जो लास्ट वाला जो ऑर्बिट है ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है. So we can say that it is uncompletely filled. So now here, what I am trying to say. So there are 29 protons, 29 electrons. So this atom of copper is neutral in nature. Now we know that there is a force of attraction between positive and negative. तो एक एटम में जितने प्रोटॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है. सो तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. सो यहाँ से देखिए, दिस इज न्यूक्लियस. विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, ये जो नंबर 1 ऑर्बिट में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा बहुत कम है. जितना डिस्टेंस कम होगा, पॉजिटिव नेगेटिव करीब होंगे, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. ओके तो जितना, अब सेकंड ऑर्बिट में न्यूक्लियस से थोड़ा सा ये दूर चले गए हैं दोनों, ये वाले जो सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गई है. तो इसी तरह थर्ड ऑर्बिट में जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी न्यूक्लियस से दूर चले गए, उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है. एंड हेयर इन द फोर्थ ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन विच इज इन फोर्थ ऑर्बिट इज इंक्रीज्ड, देयरबाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम डिक्रीज. तो यहाँ पे जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन नंबर 4, इसमें जो है हमारा जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ये लूजली अटैच है, दिस इज लूजली अटैच विद द न्यूक्लियस. थोड़ी सी एक्स्ट्रा हम एनर्जी देने पे इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं बाय गिविंग हिम एनर्जी, सम एनर्जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे होल हो जाएगा. होल, नेगेटिव चार्ज हमने निकाला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल. तो ये होल पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो ये कॉपर की एक एटम पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन को, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको रिमूव करने के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. नाउ दिस बॉडी इज चार्ज बॉडी. नाउ देयर आर अब नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है. नाउ देयर आर एबनॉर्मल कंडीशन. अंडर एबनॉर्मल कंडीशन दिस बॉडी इज चार्ज बॉडी. इसको हम रिमूव क्यों कर पाए, क्योंकि ये लूजली अटैच है फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस is increased. So we will continue from here in the second lecture, that is atomic structure of an atom given by Neil Bohr. So I am going to hand here the video.